Namaste. Today on Youth Ki Baat, we're joined with someone who turned a simple idea into a nationwide movement. Yogesh Ji, the founder of Bamboo India, is not just an entrepreneur. He is a change maker challenging the plastic narrative and replacing it with something far more rooted bamboo. From his powerful pitch on Shark Tank India to creating sustainable livelihood opportunities in rural India, his journey is a testament to how purpose and profit can go hand in hand. This episode is brought to you by Youth of India Foundation, a United Nations accredited youth led organization committed to amplifying voices that are building a better tomorrow. Let's dive into the conversation with Yogesh Ji and explore the power of eco innovation, resilience, and building from the ground up. Namaste, Yogesh Ji. Welcome to Youth Ki Baat. So let us start with the obvious. Like, why would you choose bamboo? Like, what was the thing that came up to your mind? Ki, haan, we can do this with bamboo. Okay, so first of all, thank you so much for having me here. And okay, so bamboo, why bamboo is a very obvious question. मैंने जब स्टार्ट किया था कि क्या कर सकते हैं, तो आई came across lots of material like sustainable material like teak, neem, and all this. But when I started reading bamboo, so I got some fascination of facts like bamboo is the fastest growing grass in the world, and that is the only sustainable material right now available with us. And as India is world's largest bamboo producing nation now, so there is no look back, as simple as that, because the fastest growing grass in the world, it's a grass, not a tree. So we can replace easily in lots of single use plastic to bamboo, and again it connects lots of dot like women empowerment, farmers engagement, sustainability. So I thought bamboo is the only sustainable material that time and even today. So that's why bamboo. Yogesh, you have often mentioned that you've seen it in the West, you've seen it abroad, where they use their own materials, millets, and everything, and that is why it came up to you कि हम यहाँ bamboo use करते हैं. Is it something that is actually Definitely ki, every country has their own potential, their own raw material or skill set. Just for I always refer like Germany is a beer loving country, not because of other reason, but they produce lots of barley and they converted barley into beer culture. So similarly, when I started working in the agro things, so I thought, what is our potential? What is our major crop? So in the east we saw rice, in the south we saw rice, north and west we saw wheat culture. So I thought, why? What is the common in between? Then I found bamboo is the most common thing used across India, and we are blessed with bamboo. So we have around 138 different bamboo species available in India, right from Dwarka to Vijayanagar in the east, or even Ladakh to Kanyakumari. Every state you will find a beautiful collection of bamboos, and all those belongs to the farmers. So it's a good opportunity to use that as a culture, and so can we create a bamboo culture out of it? So that's why bamboo. that is very right. One thing that I can point out from here is, do you think your experience in Germany and how you lived there shaped you right now, or shaped the experience that you're bringing to the table? Definitely, every day is contributing to your life. Every day you are learning something. Every day is you are meeting people. You are influenced with the thoughts, influenced with the culture. So Germany plays a very major role in my personal development as well as in the business, because before leaving Germany, I was just a person who is aspired to travel abroad, having my own house, having my own car, and well settled family, something. But when I reached Germany, I started seeing these uh, German people, how they enjoy their life, how they enjoy weekend, how they enjoy work-life balance. So I thought it's a good opportunity. Why not we are doing like this? And then I'm getting time from myself to listening music, reading books, and traveling across various countries. And these days enrich me as a person. And then I started thinking about the society, about the country, because when you are abroad, your
patriotism is always on the high Right, because right. you interact, you represent your nation there, and these things help me a lot. And वहीं से फिर शुरुआत हुई, एंड सोचा कि नहीं अभी इट्स गुड टाइम कि मेरी मेरी लाइफ एक अच्छी तरह से जी ली है, नाउ जस्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी. So that thoughts strongly started coming, and I was just exploring the opportunity, and Bamboo gave me that opportunity. What do you think is the hardest part of this transition? मतलब जर्मनी में लाइफ रहना, उसके बाद इंडिया आना, बहुत कल्चरली डिफरेंट है. तो what do you think was the hardest transition in this? Shifting from a corporate life to starting entrepreneurship. It is actually a very big shift when you look at it. नहीं, simple, don't think so much. That is the simple thing. Because if you start thinking कि 50 साल के बाद क्या होगा, 40 साल के बाद क्या होगा, don't think like this. Just think कि एक 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा. मैंने उस टाइम भी ये सोचा था कि जस्ट टेक 1 year ब्रेक, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं दोस्तों से बात कर रहा था, तो मैं कहता था यार क्यों इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है कि रोड भी ऐसे खराब है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा वैसा पॉलिटिकल इश्यूज हैं. बट देन आई रियलाइज कि एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आई एम ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर. तो Right. व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन बिल्डिंग. तो एक बात थी कि ठीक है मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, दैट इज 99% पीपल इससे हम टैक्स पे कर रहे हैं, व्हाट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, परफेक्टली फाइन. सो कैन यू गिव योर सम टाइम फॉर समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. सो आई थॉट, तो जब हमारी बात हो रही थी दोस्तों के साथ, तो सबने कहा कि नहीं ये तो कहने की बातें हैं, इट इज दैट नॉट दैट इजी. तो आई थॉट ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, 1 साल का ब्रेक लेते हैं. बिकॉज 14 years का मैंने कंटिन्यूस सर्व की हुआ था मेरा जॉब में. आई थॉट 14 इज अ गुड टाइम, अभी 1 साल का ब्रेक तो बनता है, एटलीस्ट 1 साल में मैं ये एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ कि कैन आई स्टार्ट Hmm. समथिंग एल्स, Hmm. कैन आई डू 3 things was in my mind. First Hmm. of all, creating my own, Hmm. because I was received lots of awards during my career as an innovator, Right. as a creative person. So I thought always all the creativities I did for the companies, Hmm. especially for foreign clients. So I thought let's make something for India. Second, something for the farmers, because these are very dignified people or community in India Right. who need opportunity. Very They right. don't need sympathy. They need opportunity. And third one is some sustainable thing, because reducing plastic waste, reducing landfills. So these are also important things, because now we are growing at a high speed. So these things someone needs to take care. So I thought ये तीनों चीजें मुझे मिल जाती है, then I will start my business. And then because of bamboo, I am getting all those three dots connected. So I thought, okay, yes, now this is the right time. Take 1 year break. अगर ये नहीं होता है तो एटलीस्ट मैं मेरी आने वाली जनरेशन को कह सकता हूँ मैंने ट्राई किया था. कुछ हुआ नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैंने ट्राई किया था. बट 1 साल के बाद लगा कि ये सब ठीक चल रहा है, व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस. फिर 1 साल का, 2 साल, 3 साल, एंड अभी नेक्स्ट मंथ वी आर कंप्लीटिंग अवर 9th year. So we are Very shifting to nice. double digit. So it's a good journey. Congratulations for that, and I'm very happy. I'm very glad that you actually connected the three dots and made something out of it. Yogesh ji, if you look at our generation right now, हम में ना वो ब्रेक लेने की कैपेसिटी है ही नहीं. हम ये सोचते हैं हम अगर 5 मिनट भी दिन में अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं. सो मे बी योर जर्नी इज समथिंग कि 1 साल के पॉज के बाद यू आर एक्चुअली डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू. डू यू थिंक दीज पॉजेस आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? हाँ, एक्चुअली आप ये हमेशा देखते होंगे कि अगर आपको हाई जंप करनी है तो थोड़ा पीछे आना पड़ता है, जस्ट इलेस्टिसिटी, राइट. सो Yeah. इफ यू आर टेकिंग अ पॉज, दैट डज नॉट मीन कि यू आर टेकिंग अ ब्रेक. Right. यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द बिगर लीप. सो Right. दैट इज द थिंग. बिकॉज अगर आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करने में फॉर एग्जांपल आपको 1 घंटा लगता है, तो यू विल सी कि 15-20 मिनट आपको जो पेंसिल को शार्पनिंग करने में लग जाता है. So Hmm. these breaks are nothing but to sharpen yourself, preparing yourself for the future. So that is what I feel about these breaks. So these breaks are not wasting. Sometimes अगर आप ड्राइंग करते हो या कुछ भी करते हो या मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू गेटिंग स्टक, एंड उसके बाद आपको लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है. आप 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हो, पानी पीते हो, जरा घूमते हो, देन यू रियलाइज हाँ ये तो ऐसा है. सो Hmm. दैट ब्रेक इज, दैट्स द रीजन वो ब्रेक बहुत जरूरी है.
That is such an amazing answer. I mean, I myself am touched with it because this is something that I feel very often. Yogeshi, coming to the farmer's suicide point, there was a point in your life where your close friend suicided, right? What was that one thing? Was it that one thing that pushed you completely कि हाँ अब मुझे इसी चीज के लिए काम करना है अगर मुझे इंडिया वापस आना है? अ, देखो ऐसे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, राइट? तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि तब मुझे हम जब कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इतने सारे सोल्जर्स वहाँ पे है, कोई इंजर्ड हुआ है, कोई एक बट जब तक हमारे आसपास कोई सफ़र नहीं होता, हम Right. देखते नहीं है, तब तक हमको कभी-कभी वो रियलिटी समझ में नहीं आती। तो ये एपिसोड वैसे ही था मेरे लिए कि जब we came across that family and I thought it's not a good sight to see. बट लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं जो वो फ्यूल करते हैं आपको। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो हमको बोलते हैं कि दैट्स अ इग्निशन पॉइंट। सो दैट इज़ द Right. स्पार्क एंड वहाँ से फिर यू कंप्लीट चेंज योर कोर्स। So maybe that was somewhere where you were actually put in the shoes of the farmers का families and you actually realized that what राइट। is the नहीं, thing. नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो डोनेशन दे दो, इश्यू Hmm. सॉल्व हो जाएगा। बट अगर किसी के फैमिली का कोई हेड हेड ऑफ द फैमिली ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है एंड यू गिव देम इवन 1 करोड़ रुपीज, दैट विल नॉट सफाइज। या Right. इफ यू गिव देम इन जंक और यू गिव देम एज अ रिवॉर्ड कि आपने ये काम किया उसके बदले ये हुआ है, देन दे विल, उनको भी वो मनी लेने में एक प्राउड प्राइड फीलिंग होगा कि यस ये मेरे इट्स अ मेरे खुद की कमाई है रादर Hmm. देन अ डोनेशन। सो उनको वो हाथ में काम देना बहुत ज़रूरी है। शायद कॉम्पनसेशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैटर यस, ज्यादा यस, करती है डेफ़िनिटली। हमेशा. और एंगेजमेंट भी रहता है। That हुँ, is right. Yogeshi, you have been to Shark Tank as well. Would you हुँ, mind sharing the behind the scenes that happen in a Shark Tank? Because it is very fascinating for us to watch Shark Tank. मेरे को लगता है हम में से सब अगर लंच टाइम पे कुछ देखना चाहते हैं तो वो Shark Tank देखना चाहते हैं because it is something which is delivering knowledge as well, which is letting you know about things happening around the world. So what was your one point कि जिसमें आपको लगा okay Shark Tank is so beneficial for anybody or any startup to go and participate? okay. This is really good question because what I learn about business is from Shark Tank. It's as simple as that. बिकॉज़ जब मैंने बाम्बू इंडिया स्टार्ट किया, जब हम बिज़नेस कर रहे थे, तब मैं शार्क टैंक यूएस देखता था, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया देखता था। तो वो मेरे लिए इनडायरेक्टली कि एमबीए का कोर्स है। Hmm. तो उसमें आपको पता चलता है कि रोआस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैपेक्स क्या होता है, वो सब चीज़ें। क्योंकि ये टेक्निकल jargon, आई एम अ आर्ट्स स्टूडेंट। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, Oh, बीए। देन आई डिड मास्टर्स इन कंप्यूटर्स बट देयर वाज़ नो बिज़नेस स्टडी एज़ सच। right. तो जब हमने शार्क टैंक देखना शुरू किया तब मुझे वो थिंग्स पता चलने लगी, अरे ऐसा भी होता है, आइडिया को ऐसे नरिश करते हैं तब जो आइडिएशन स्टेज से प्रोडक्शन में जाता है, फिर पायलट टेस्टिंग होती है। तो वो चीज़ें वहाँ से मुझे पता चली। और जब ये शार्क टैंक इंडिया में आ रहा था तब मुझे मैसेज आया कि अरे शार्क टैंक इज कमिंग टू इंडिया। तो वो मेरा सम काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में था कि यार मुझे भी पार्टिसिपेट करना है बिकॉज that is the platform from where you can reach number of people, because that is a platform where you can reach all the masses and you can clearly communicate what you are doing, what is the purpose of your business, it is about money or the society or the sustainability, all those things you can talk very clearly। और वो कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, तो और उसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि टीआरपी बढ़े, बिकॉज इट इज अ एजुकेशनल Right. एपिसोड, एजुकेशनल। बिकॉज बिफोर शार्क टैंक ऑल्सो आई पार्टिसिपेट लॉट्स ऑफ कॉलेज इवेंट्स, कॉलेज फेस्टिवल्स जहाँ पे मैंने सेशन किया है। एंड देन जो क्वेश्चन आते हैं वो शार्क टैंक के पहले और शार्क टैंक के बाद बहुत ही फर्क हुआ है। अभी स्टूडेंट आस्क वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन, Hmm. दे विल नॉट आस्क जस्ट सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। Right. सो वो शार्क टैंक उसके लिए इम्पोर्टेंट है। शार्क टैंक गिव्स यू नेटवर्क, बहुत अच्छा नेटवर्क, गुड एक्सपोजर। एंड व्हाइल preparing for the shark tank, you are preparing lots of things, like you're preparing for your how to pitch, how to present yourself,
हाउ टू मैनेज योर टाइम, उसके बाद हाउ टू मेक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली, एसओपी क्या होते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, वो सब चीज़ें यू यू आर स्टार्टेड मेकिंग। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक लर्निंग कर्व था, एंड सो दैट इज व्हाई शार्क टैंक इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। राइट, एंड ऑल्सो आई थिंक कि शार्क टैंक की वजह से क्यूरोसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो आपने कहा कि क्वेश्चंस के तरीके अलग हो गए हैं, डू यू थिंक फ्रॉम द सीजन वन ऑफ शार्क टैंक टू द सीजन राइट नाउ बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस आया है स्टार्टअप्स में? इट हैज़ एक्चुअली fueled द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। डेफिनेटली, बिकॉज देखो गवर्नमेंट उनका काम करती है, राइट। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, स्टार्टअप के लिए फंड एलोकेट करती है, पेटेंट के लिए एक प्रोसीजर इजी कर देती है, बट एट द एंड ऑफ डे मुझे ही एज अ फाउंडर, मुझे सुबह उठ के काम करना है, मुझे ही आइडिया के ऊपर काम करना है। बट वो क्या करना है, हाउ द फाउंडर थिंक्स, हाउ दे बिल्ड टीम, और टीम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बाद लीगलिटी का एक्सपेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें पता नहीं होती। तो ये शार्क टैंक की वजह से ये चीज़ें पता होनी शुरू हो जाती हैं, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद अभी एमबीए का, मैंने तो एमबीए नहीं किया है, बट शायद एमबीए में यही चीज़ें पढ़ाते हैं, बट इट्स थ्योरेटिकल, ये है तो प्रैक्टिकल है। एंड एवरी शार्क टैंक एपिसोड इज अ केस स्टडी। तो जो फर्स्ट सीजन था, जो जहाँ हम थे, वो बहुत रॉ सीजन था। तो उसमें क्वेश्चंस किसी को पता नहीं थे, उसमें शार्क कौन है किसी को पता नहीं था। आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर टिल द टाइम आई, वन डे बिफोर अर्लियर हमको पता चला कि ये 5 शार्क अवेलेबल, जब कल अपेयर होने वाले हैं, तो उनके बारे में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी कि नमिता मैम क्या करती है। वो पुणे से है तो थोड़ा पता था उनके बारे में, बट बाकी जो लोग थे, अमन हाँ बोट कंपनी का फाउंडर है, लेंस कार्ड का पीयूष बंसल है, तो ये नाम पता थे, बट कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, वो भी कभी सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं थे। तो जब सामने हम आए और बातचीत हुई, देन वी रियलाइज कि यस, कि ये ऐसा होता है, प्रेजेंट ऐसा करते हैं, ड्रेस ऐसे होना चाहिए, या फिर आपको नंबर्स बाय हार्ट होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें सीजन 1 में पता चली। सीजन 2 इज अगेन बिट एडवांस, उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी पता थे, तो स्टार्टअप फाउंडर प्रिपेयर होके गए थे। थर्ड सीजन में और कुछ तो ये जितने सीजन होते जाएंगे, ये थिंग्स गॉट मोर एंड मोर मैच्योर, एंड इट्स अ वेरी गुड फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। योगेश जी, आपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि कैसे स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो आप करते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें आप इम्प्रेशंस बनाती है। जैसे आप जब पिच करने गए थे तब आप एक बैम्बू साथ में लेके गए थे। व्हाट डू यू थिंक इन जनरली लाइफ में भी वो स्मॉल स्मॉल जो इम्प्रेशंस है वो कैसे काउंट करती है? देखो, मराठी में एक ऐसा बोलते हैं कि जैसा बोले तैसा चाले। जैसे आप बोलते हो वैसे ही अगर आप कृति करते हो तो आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे। अगर आप बोल ही कुछ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि बाम्बू टूथब्रश यूज करो, और आपने मेरे घर में प्लास्टिक टूथब्रश देखा, तो हाउ पीपल विल बिलीव यू, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बोलते हो वैसे करो, या जो करते हो वैसे ही बोलो। डोंट ट्राई टू एग्जेगरेट थिंग्स, वो नॉर्मली होता है सब में। तो इसलिए जब हमने ब्रश स्टार्ट किया था बनाना, बैम्बू टूथब्रश स्पेशली, तब क्वेश्चन आया कि लोगों को कैसे बताए कि यार ये सेफ है या फिर ये जेन्युइन है। तो फिर आई स्टार्टेड विथ माई सेल्फ, तो आई इंट्रोड्यूस दिस ब्रश। तो उसकी जो पोस्टर गर्ल है वो मेरी बेटी ही है, तो मैंने उसको ही लेके फोटो खींचा, देन आई स्टार्टेड, मैं मेरे बेटी के लिए कितना केयरिंग हो, उतना ही मैं मदर नेचर के लिए भी केयरिंग हूँ। दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज देयर। तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। उसके बाद देन आई स्टार्टेड शोकेसिंग, देखो ये प्रोडक्ट है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। जैसे फेसबुक ने हमको इनवाइट किया था, तो आई वेंट विद द बाम्बू गॉगल्स, ये जो गॉगल्स है वो लेके गया था। तो वहां पे उन्होंने देखा, तो वो डिमांड करने लगे कि कैसा दिखे। तो ये दैट थिंग्स रियली मैटर अलॉट। Actually, even I feel like the best thing that you can do is practice what you preach. राइट। And there's nothing beyond it. युकेश जी, बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि डोंट मिक्स योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड थिंग्स लाइक दैट. What was Ashwini ji's reaction when you came up with this entire idea to her? How was she supportive about it? And how did you feel about it in general? And this is also something that there are couples right now in our generation who are wanting to work together, but there is some amount of toxicity coming in, some amount of work pressure coming in. शायद उनकी जो conversations है वो दिन भर बस काम से related होती है, and there are so many grudges coming in.
How do you think they can be better at that particular space? Uh, very good and practical question, because uh, I know Ashwini since long time. We are college friends, राइट? तो हम कॉलेज में साथ थे, फिर उसके बाद में हमने जॉब एक साथ किया। देन सो बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस वी वर अराउंड 18 years टुगेदर। Oh my God. तो वी नो ईच अदर वेरी वेल, राइट? कि मुझे पता है उसकी कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, उसको कौन सी पता है मेरी चीज़ कौन सी पॉजिटिव है। तो जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने उनको कहा कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉब छोड़ के ये करना चाहिए, सो शी वॉज वेरी क्लियर कि उसको पता है कि मैंने बैकग्राउंड में प्रिपरेशन किया होगा, मैंने फ्यूचर का प्लानिंग किया होगा कि अगर नहीं होता तो बैकअप प्लान क्या है। तो शी ब्लाइंडली सेड ओके यू गो हेड, यू जस्ट मेक श्योर कि जो अभी हमारे करंट एक्सपेंस है या करंट जो लाइफस्टाइल है, बच्चों की पढ़ाई है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन, बाकी तो क्या कंडीशन हो सकती है। एंड देन आफ्टर 1 year बिजनेस के होने के बाद वी स्टार्टेड शी स्टार्टेड एंगेजिंग विद बैम्बू इंडिया। तो मुझे पता था कि शी इज वेरी गुड एट फाइनेंस, मनी हैंडलिंग, टॉकिंग टू द पीपल लाइक सप्लायर्स, टीम मेंबर्स, बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, बिकॉज अगर थिंग्स नॉट हैपन एज पर द प्रोडक्शन प्लान और एज पर द डिजाइन, तो वो थोड़ा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ। बट दैट्स व्हाई शी कम टू द पिक्चर कि यू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस in terms of marketing and production, but these finance things you I will take care. And then तो डिपार्टमेंट अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड वी आर अवेलेबल 24/7 टू ईच अदर। तो वो उसका भी कोई इशू नहीं होता कि चलो उसी बहाने वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, एंड इट्स गुड। बट अगर लोग कहते हैं कि दो प्रोफेशन सेम प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, बट इफ यू नो द पर्सन एंड यू आर रेडी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कीप इट बिजनेस असाइड, मेक अ प्रायोरिटी टू द फैमिली। तो वो अगर हम करते हैं देन आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। I think in your case, it's a perfect fit of calm and chaos with. She handles the calmer part, right? She's handling PR and communications abhi as well. Major communication, communication in terms of the staff communication, Alright. vendor communication, हाँ. but this digital presence that I am taking care of along with my son. एक और चीज़ आपने योगेश जी बोली थी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि आपको वापस जाके उनसे पूछना नहीं पड़ता है कि वो टू डू लिस्ट आपने क्या दी, एंड दैट इज़ द मेन फैक्टर हाउ यू प्ले अलोंग इन योर बिजनेस. सो व्हाट डू यू थिंक actually people should follow it? Actually people should go down their line where they're prioritizing their employees so much that they feel like this company is also mine, and they work towards it in that way. ओके, सो इट इज ऑल द ट्रस्ट गेम। ओके, वो कंपनी में काम करते हैं तो उनका एक दो मतलब उनका भी कुछ मोटिवेशन है, जैसे सैलरी टाइम पे हो, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट हो, राइट? तो ये दो चीजें अगर हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि उनके सैलरी में, अभी लास्ट 9 years वी आर फॉलोइंग नॉट अ सिंगल डिले, कि हमने सैलरी में कभी डिले नहीं किया, जो डेट फिक्स है उस डेट पे सैलरी कर दो। तो उनके दिमाग से वो टेंशन निकल जाता है कि अरे सैलरी होगी नहीं होगी, कम होगी ज्यादा होगी, वो टेंशन निकल जाता है। सेकंड, व्हेन यू से रिस्पेक्ट, उनको काम दो। इनिशियली यू नीड टू ट्रेन देम, बट एक बार उनको पता चल गया, उनको एक वीकली कैलेंडर दे दिया कि आज इस वीक में ये काम करना है, देन अगर काम खत्म होता है आप निकल जाओ, वी विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रश बना रहे हैं तो आज का टारगेट अगर 5,000 ब्रश है या 10,000 ब्रश है, तो उसका कैपेसिटी, उसका जो काम है वो खत्म करके निकल जाओ, परफेक्टली फाइन, वी विल नॉट आस्क अगर 1 घंटा क्या किया तूने। बस वो टारगेट वर्सेस अचीव इतना देख लो, फॉलो अप मत करो, उसके पीछे खड़े मत हो। अगर उसके पीछे खड़े हो जाएंगे तो उसको लगेगा यार ये क्यों खड़ा हो गया है। हाँ, उसको बताओ कि ये गलत है या ये सही है। बाकी सब मेजरमेंट का ही गेम है, अगर मेजरमेंट से सब चल रहा है, क्वालिटी पैरामीटर चेक हो रहे हैं, वी हैव थिंग्स इन प्लेस, लाइक अगर हेड का थिकनेस इतना होना चाहिए, स्मूथनेस इतना होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, तो ऑल दीज एसओपीज आर इन प्लेस। तो जस्ट फॉलो द एसओपी, वो भी खुश हम भी खुश। तो इंटरवेंशन, किसी के काम में इंटरवेंशन नहीं होता। At the foundation as well, Yogesh, we always follow a particular SOP to any initiative we do, be it the smallest, be it the biggest. Anywhere there is always an SOP maintained. No, I don't know how many times I've been scolded for not maintaining a proper SOP, but then yes, that is what teaches you how to actually form something. How important do you think is a structure in a business? नहीं, स्ट्रक्चर ही चाहिए, दैट इज द ओनली वे।
You have everything in place, roles and responsibility very clear होनी चाहिए. Hmm. एंड अभी हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है, फॉर एग्जांपल ओरल बी के साथ काम किया है. दे Wow. ऑलवेज से कि राइट व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू राइट, एज सिंपल एज दैट, डोंट गो बियॉन्ड दैट. अगर आपको लगता है जो आपने लिखा हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट प्रूव इट, डॉक्यूमेंट अपडेट करो एंड देन स्टार्ट दिस प्रोसीजर. उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है. तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो हैंड होल्डिंग आप आगे कैसे करते हो. तो कंपनी शुड नॉट बी पर्सन डिपेंडेंट, कंपनी शुड बी एसओपी डिपेंडेंट या वर्क फ्लो डिपेंडेंट. तो ये अगर हम फॉलो करते हैं, इनिशियली बहुत मुश्किल होती है. जब मैं था मुझे भी लगता है यार 5 मिनट का काम है लेकिन 10 मिनट का डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना है. बट अगर मुझे ग्रोथ करना है आगे, देन आई हैव टू मेंटेन दिस डॉक्यूमेंट. अगर वो डॉक्यूमेंट में मेंटेन नहीं करता हूँ तो मुझे वो 5 मिनट के काम पूरे साल भर करना पड़ेगा. तो ये वो इम्पोर्टेंट है. अगर कोई कल कोई मिसिंग हो जाता है या कोई कल एब्सेंट हो जाता है किसी काम की वजह से, तो उसका काम नहीं रुकना चाहिए. द शो मस्ट गो ऑन. सो फॉर दैट शो मस्ट गो ऑन, यू शुड हैव a proper structure, proper documentation, proper procedure in place. Right. So, Yogeshi, do you think you're actually working on a mission, or do you think you're working on a business? So, Bamboo India is a mission. That is what we are saying. It's a nation building activity. Business is a outcome. Just like वाटर अगर फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. तो पानी को कुछ नहीं होता, पानी इज फ्लोइंग अगेन, कोई उसमें Right. 1 लीटर का भी फर्क नहीं पड़ता. बट इलेक्ट्रिसिटी जर्नी, तो बिजनेस इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी. पानी तो फ्लो होता रहेगा. हमने उसको बस एक डायरेक्शन दिया है और उसको सोशल इंजीनियरिंग या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्ट्रक्चर दे दिया है. Yogeshi, one thing that I've noticed about you is you're very down to earth and you're very humbled. What do you think these qualities bring up in an individual? I don't think so. I'm as natural as possible because आप इम्प्रेस क्यों अगर किसी को करना चाहते हो हाँ तो वो जी. शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा. इफ यू आर नेचुरल एंड इफ ही और शी इज इम्प्रेस्ड, इट विल बी अ लाइफ टाइम. सो व्हाई इम्प्रेस समवन. you just do your work. If she like or she likes, she will continue. If not, and it's none of my business. मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों ने लाइक ही करना चाहिए. आई एम नॉट आइसक्रीम सेलर. You've always mentioned that it is not for the income, it is for the outcome. So, what are the challenges that you have faced while building Bamboo India? Okay. So the phrase "this is not for the income but for the outcome," because I think every action should be something meaningful. At the end of the day, when you retrospect yourself and when you see ki what I did the whole day, what I did in last 1 year or 6 months. So retrospection is very important. So Hmm. after retrospection, you will understand what I did something good, Hmm. what is outcome I have delivered, because these parameters you have to measure at some point of time, Hmm. right? Not in terms of only income or not in terms of only for your personal growth, how you contribute into the society, how you manage your workforce and all those things. So while making this, I learn a lot things, especially this typical phrase. It is very strict to my mind. I don't know where I read or what I don't know is something we have created. I really don't know, but that is stuck in my mind right from the day one. Because अगर मुझे पैसे ही कमाना था तो मेरा जॉब से मैं इससे ज्यादा पैसे कमा रहा था और Hmm. कमाता भी आगे जाके. Hmm. But at the end of the day, I really enjoy these things. So the enjoyment is very important. I am taking enough time for my family. I'm taking enough time for the society, enough time. So these things are getting better day by day when I retrospect myself. And then the major contribution is a change in the mindset. Because जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब बाम्बू टूथब्रश या बाम्बू का उतना अवेयरनेस नहीं था. Right. We being a catalyst, we are not saying we are a change maker. We are the catalyst who encourage people, we encourage business to explore this side of the world, like the bamboo world. And now people start using products, lots of companies into it, they are doing well. So my end of the day intention is someone should get inspired and do something better what I have not done. So that's why it's not for the income but for the outcome. You've talked about purpose driven nature. There's one person that always comes to your mind when it is about purpose. That is Mr. Ratan Tata. Yeah. You have met him personally.
How has your experience been with him? So now, when you say very humble or down to earth, Hmm. so he was the person, because when I met him in person, so he was so down to earth. Like, he was just sitting in the same chair, not a different chair. He was very keenly listening what I was saying. Hmm. He was seeing my passion. He was seeing what I brought on the table. Okay, these are the brushes, these are the products, and the curiosity at that age. He was Hmm. more than 70 that time, right? And he was very cautiously, oh, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. So I thought कि ये बंदा इतना अचीव करने के बाद भी वो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई है. तो दैट इज मेक रतन टाटा रतन टाटा. That is very true. You have met PM Narendra Modi as well, and you have often shared his perspective about bamboo and how he also wants to promote it. 1927 Act as well. What do you think India right now is making changes or making amendments to actually bring up sustainable culture more? So yeah, I really thankful to this Narendra Modi government and the entire people of India, because uh, when you change any particular law or Hmm. any संविधान हम बदलने की बात करते हैं, तो there are some things which was really not good. For example, 1927 Indian Forest Act, which Hmm. was designed by British. Hmm. And when we say it designed by British, definitely it is not 100% for our benefit. He Right. always keep if and but, and that create confusion, and these loopholes people take advantage of. So there was a clear cut definition of Indian in Forest Act Hmm. 1927. uh, कि bamboo, in a one chapter they say bamboo is a tree, and one chapter they say bamboo is a grass. So Oh. it is up to the government officers who catch you with bamboo products or catch you with the bamboo and say, no, no, it's a tree. So if you cutting the tree, you are making a Crime. illegal Yeah. activity or crime. Yeah. So you have to be punished. Right. And if he got a bribe, then he Hmm. will say, okay, it's a grass, you can go. So what government make this entire Forest Act, bamboo is a grass. He changed the classification. Now Hmm. growing bamboo is a easy, cutting bamboo is easy, cutting transportation bamboo is easy, converting bamboo into product, that is easy. So these things make this bamboo sector grow faster, as simple as that. And there are so many such kind of changes initiative this government brought on the table, and I'm very happy because the startup culture or the make in India culture or Hmm. the uh, invest India culture, all those things are linked to each other. So these are the really moral booster for us. तो शायद यही एक चीज़ है जो बैम्बू को अभी प्रमोट कर रही है इतना ज़्यादा कि मे बी पिछले कुछ सालों में इट वाज डिफिकल्ट टू एक्चुअली कल्टीवेट बैम्बू एंड यूज इट फॉर बिजनेस पर्पसेस और समथिंग लाइक दैट Exactly. एंड दिस हैज चेंज्ड द एंटायर स्फीयर दिस इज समथिंग न्यू दैट इवन आई हैव लर्नड अबाउट राइट नाउ योगेश जी ऑफन वी सी दैट जो रूरल आर्टिजन्स होते हैं और अर्बन बायर्स होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा गैप होता है जो यूजुअली दिखता नहीं है देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट बिकॉज वी यूजुअली प्रमोट गुड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड मोर देन गुड्स कमिंग फ्रॉम आर इंडिया itself so this is also a play of mindset here how do you plan on bridging the gap So that is why Bamboo India comes to an existence, and that's why we always say Bamboo India is a mission, because we want to create a platform hmm. where artisan can see what kind of a product is market is really required and Hmm. how we can make that product. Hmm. For example, this bamboo speaker, again one of the revolutionary product you can say. In 2015, I have thought of this product Hmm. because I have seen this product outside uh, Indonesia, somewhere else. I thought, okay, can we replicate that product with Indian context? So we study Indian bamboo and we create. So I was not having that picture in front of me, but I was having that, okay, हाँ ऐसा कुछ था, तो हमने वो बनाया, Hmm. and then we make it. We created one design, इंडियन मोबाइल के हिसाब से हमने उसका स्लॉट भी बनाया Thank you. एंड फिनिशिंग दिया, उसको एक इंडस्ट्रियल टच दिया उस प्रोडक्ट को. आज वो प्रोडक्ट हम साल में वी आर सेलिंग अराउंड 60,000 70,000 साल में, जो पहले था ही नहीं, राइट.
एंड वो प्रोडक्ट हम बना रहे. इफ यू सर्च ऑन गूगल टुडे आल्सो bamboo speakers, so we are in your not even top 10, because artisans picked up that product and they Yeah. started selling this product. So Yeah. that is why we are very much happy, because we are not saying it's a competition. We are saying कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं होता तो people would give a preference to some kind of a plastic product or Right. acrylic product, Right. right? अभी अगर हमें 70,000 पर ईयर ये प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, यूनिट बेच रहा हो, सब मिला के इंडिया में सब मिला के 1 लाख तो बेच ही रहे होंगे इस साल में. तो 1 लाख प्रोडक्ट्स हमने रिप्लेसमेंट दे दिया मार्केट में. सो दैट इज व्हाट आई एम हैप्पी. एंड ऐसे ही जो भी जैसे हम लोग हैं, हम काफ़ी घूमते हैं, राइट? हम फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यार ये प्रोडक्ट अगर हमारे लोगों ने बनाया तो इससे सस्ते में बना सकते हैं, इससे अच्छे क्वालिटी में बना सकते हैं, या अपने कॉन्टेक्स्ट में बना सकते हैं. तो वो एक्सपोजर इन लोगों को देना बहुत जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई आवर रोल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज एज अ अर्बन सिटीजन और बिगर एक्सपोजर we can bring that designs to India and inspire our people. Can you make this? And give them an exposure, because उनको exposure दे दो. Indian farmers, artisans, they are world class. They can वो फोड़ देंगे. सही बात है. योगेश जी, आप भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, आपने 20 से ज्यादा कंट्रीज घूमी हुई है अभी तक. What do you think is the one thing that every individual should keep in their mind while traveling to a country? Maybe observing new things, maybe getting a takeaway from it. What do you think is the one thing that they should actually keep in their mind? बस घर से बाहर निकलो. बस घूमो, बाकी दुनिया तुमको सिखा देगी. यू डोंट नीड टू रेडी. आप बस ओपन रहो. डोंट ट्रैवल विद दिस ग्रुप्स लाइक ट्रैवल कंपनीज. दे विल ओनली शोकेस यू द फेमस मॉन्यूमेंट्स. अगर आप कहीं पे जाते हो तो ट्रैवल विद द लोकल ट्रांसपोर्ट, टेस्ट लोकल फूड, राइट? मीट द रियल पीपल. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप यहाँ से निकल के 5 स्टार होटल में जाते हो पेरिस में, आईफल टावर देखते हो, 2-3 म्यूजियम देख के वापस आते हो, तो यू नो यू आर नॉट, You're a tourist. यू आर टूरिस्ट, राइट? तो Right. अगर आपको जाना है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको महाकुंभ में जाना है तो महाकुंभ में ऐसा भक्ति अगर लेके जाओ तो आपको भगवान मिल जाएंगे. अगर आप जाओगे, आपको ये कितना कचरा है, कितनी भीड़ है, तो आपको वही मिलेगा. तो आप क्या मन में लेके जाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बस, लेकिन ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज व्हाट आई एम टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैवल. बिकॉज मुझे 1 महीना भी एक घर में नहीं होता. मैं इमीडिएटली कुछ तो बिजनेस टूर निकाल के एटलीस्ट जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, एग्जीबिशन अटेंड करता हूँ. तो उससे एक रेपो भी बनता है, एक साइकिल भी मूव होती है, एंड यू आल्सो ऑलवेज गेटिंग फ्रेश. I can completely relate to that point. मेरे पेरेंट्स भी फेड अप हो चुके हैं इस वजह से क्योंकि मुझे महीने में एक ट्रिप तो चाहिए होती है. नहीं, वो दैट इज गुड. इट्स अ फ्यूलिंग पार्ट. हाँ, एंड द परसेप्शन पॉइंट दैट यू मेंशन अबाउट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफन जब हम अगर किसी जगह एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा एक नई चीज पता लगती है जो हमें नहीं पता रहती है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू एज वेल. आई फील लाइक बिकॉज आप किसी से भी बात करो ना योगेश जी, ये चीज मुझे खुद पर्सनली मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाई है कि यू शुडंट टॉक टू समवन जस्ट बिकॉज लुकिंग एट देयर पोजीशन, लुकिंग एट देयर स्टेटस. मैं घूमने जाती हूँ, मैं वहाँ के रिक्शा वाले दादा से लेके द कंपनी फाउंडर्स, देयर सीईओज, सबसे बात करती हूँ. एंड देयर इज ऑलवेज अ बेटर एंड अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव टू इट. So I completely agree and second that point of yours. What is the one favorite travel memory of yours? एवरी ट्रैवल मेमोरी इज हैविंग ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली. अभी एक मैं रिसेंट में अभी इमीडिएट रिकॉल हो रही है कि मैं जब अभी रिसेंटली चाइना गया था, हाँ. तो द पर्सन आई वाज अबाउट टू मीट, आई नेवर सीन हिम, हर नेवर सीन हर. हमने सिर्फ चैटिंग पे बात की थी. तो बट शी थिंकिंग यू कम ओवर, आई विल अरेंज योर ट्रैवल कंपनी विजिट, आई विल शो यू द प्रोडक्ट ऑल. तो एंड after reaching I realized कि she was not able to speak a single English word, but she was understand everything in English. So हम 3 दिन साथ थे. तो राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट वो मुझे पिकअप करने आई, मुझे होटल ड्रॉप किया. उसके बाद एवरी मॉर्निंग 9 o'clock she used to come and pick up me. We visited lots of factories, and then last day she dropped me. Every time she always play Hindi songs in her car just to make me comfortable कि you are not out of your country. Right.
And I was surprised कि she downloaded this song, she was playing those songs, and whenever I ask her, she reply back on WhatsApp कि ये मैंने कुछ को कुछ पूछा तो WhatsApp मुझे कर देती, एंड देन आई ओके हाँ ये है क्या, ठीक है, देन वी गो। तो ऐसे हमने 3 दिन कंप्लीटली स्ट्रेंजर स्पेंडिंग टुगेदर, मेरा बिजनेस का काम भी हो गया। शी टुक मी टू लॉट्स ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ उसने दिखाया कि ये ब्रूसली का म्यूजियम है, यहाँ पे ब्रूसली का बर्थ हुआ था, वो सब चीजें। एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी कि कल्चरल डिफरेंस होने के बाद भी देन वी आर ऑन द सेम पेज। So that was a very pleasant surprise for me. Majorly, one thing that we primarily focus in India itself, that is Atithi Deva हाँ Bhava. हाँ exactly. Do you think hospitality comes from within, or do you think hospitality is just an act of love or just an act of respect that you show? Both are same actually, but just make next people comfortable, make next people say कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं कहाँ पे फंस गया, राइट। तो अगर आपके पास कोई आता है, इफ यू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, मेक हिम कंफर्टेबल, even if you don't have a solution, but if you give him pointer or her pointer, okay, these are the things I know, that is also good. So same thing happens कि जो मुझे प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए थी या जो मशीन मुझे चाहिए थे, वो सब प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल नहीं थे, बट शी गिवन मी वट एवर शी कैन डू, एंड आई थिंक दैट इज वट मेक माई डे और दैट ट्रिप ब्यूटिफुल. That is so cute. Yogeshi, is there one particular advice or one particular statement that somebody said you or somebody told it to you and it stayed in you कि हाँ, this statement is something that I can dedicate my life to or something like that? Actually during my earlier days, कॉलेज के जब पास आउट हुआ था, then we got a very good contract with Indian Army. उनको कंप्यूटर टीच करना था, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ कंप्यूटर बैकग्राउंड. सो वो 4 महीने का असाइनमेंट था, वो 6 महीने के बाद में हुआ, एंड देन इट वॉज अ वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा जा रहा था. वो स्टूडेंट्स काफ़ी इम्प्रेस थे सब. यहाँ पुणे में ही बहुत सारे आर्मी के सेटअप्स हैं, तो वहाँ जाके हम कंप्यूटर सिखा रहे थे उनको. आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 की बात है, तब कंप्यूटर रिवोल्यूशन इतना बड़ा नहीं था. तब उनको सिखा रहा था, एंड आफ्टर 6 मंथ्स हमको लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा 1 साल के लिए, बट समहाउ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया 6 महीने के बाद, उन्हें एक्सटेंड नहीं किया. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी में मेरा करियर हो जाएगा. बट वहाँ पे एक आर्मी मैन थे, सूबेदार मेजर बलवीर सिंह, उनका नाम भी याद है मुझे. तो वो मेरे पास आए, बोले क्या हुआ सर, आप नाराज बैठे हो? बोले यार मेरा एक्सटेंड नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मैं बहुत उम्मीद कर रहा था, और उन्होंने रीज़न ऐसे बचकाना दिए, तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. अगर वो दूसरे कुछ भी बोल जाते कि ये है, उन्होंने कहा कि नहीं टीम मेंबर खुश नहीं है, मतलब स्टूडेंट खुश नहीं है, ऐसा वैसे. मैंने कहा देखो आपको सब पता है, सब स्टूडेंट इतने खुश है, सब अच्छा रिजल्ट भी आया है, बट जस्ट किसी को और को देना है, इसके लिए वो एक्सक्यूज बना रहे हैं. तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर देखो मैंने आपको देखा है 6 महीने से, आप इतने प्यार से दिल लगा के पढ़ा रहे हो, तो हीरा जो होता है वो कचरे में फेंको, वो चमकना नहीं छोड़ता. तो आप कहीं पे भी जाओ आप चमकोगे, यू डोंट वरी कि आपको इससे भी बेटर प्लान होगा आपके लिए. तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि इसका मतलब नोबडी कैन जज मी, मुझे पता है कि मैं एक ग्लिटरिंग स्टार हूँ, तो मैं चमकूंगा ही. That is so cute. Do you believe in the power of manifestation? Do you Yeah. believe in the power कि हाँ, there's a destiny plan for you and you will often everything will lead you to that way? नहीं, आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, Okay. बट व्हाट हिंदू धर्म में व्हाट वी हैव टीच की एक कर्म होता है, हाँ. राइट, और उसका एक भाव होता है. अगर आप वो कर्म ही नहीं करोगे तो वो होगा ही नहीं. आपके डेस्टिनेशन में होगा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, एवरेस्ट पे पहुंचना है, मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं, कोई मुझे थोड़ी ड्रॉप करेगा एवरेस्ट पे जाके. तो कर्म करते जाओ, बाकी चीज होती रहती है, बस यू नेवर स्टॉप, कीप वॉकिंग. तो वो एक्ट ऑफ आपको आपके जो डायरेक्शन, आपकी एंड ऑफ आपका जो गोल है, कीप टिकिंग टिकिंग टिकिंग, बस एक टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाओगे, और उसी को हम शायद डेस्टिनी कहते हैं. बट अगर आप कर्म नहीं करोगे तो नहीं पहुंचोगे, दैट इज 100%. अगर भगवान को भी देने की इच्छा है, भगवान बोलेगा तू घर से बाहर तो निकल. सही बात है, सही बात.
To keep walking in that line as well, what do you think is your vision for Bamboo India down 5 years the line? अ, मेरा विजन डे वन से आज भी वही है कि आई जस्ट वांट these people should be a mainstream product. Hmm. It should not be just for the sake of sustainability. People start using this product as a consumable product. It Hmm. should be available on the shelf. It should be available on every bathroom, every accessories, just like bamboo jewelry which we introduced. People That start using that. necklace Yes, that exactly. Ashwini ji wore to Shark Tank, that was Right, right. very pretty. तो सेम तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे मत देखो कि यार ये पुअर मैन टिम्बर है तो हाँ. इसको लेना चाहिए. डोंट थिंक. अगर आपको क्वालिटी अच्छा लगता है तो ही लो. सिंपैथी बिल्कुल मत दिखाओ. दैट्स इट. तो ये मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट होना चाहिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर हमारे पास 100 प्लस करोड़ लोग हैं तो हर घर में ये प्रोडक्ट जाना चाहिए. दैट इज माई एम. Your love for bamboo transcends boundaries. Like you have always talked about your passion from turning it to a poor man's timber to a wise man's timber. अभी जो मैं नेक्स्ट सवाल पूछ रही हूँ वो शायद कॉन्ट्राडिक्ट करे, बट देन व्हाट डू यू थिंक इज द अदर प्रोडक्ट देन बैम्बू यू वुड डेडिकेट योर लाइफ टू? नहीं, बाम्बू ही हो सकता है. डिफरेंट स्पीसीज बोल सकता हूँ मैं, बट बाम्बू ही हो सकता है. नहीं, लॉयल्टी. not loyalty, but there is no such alternative available Alright. because there is no product, no timber available in the world which is as good as bamboo. For example, like bamboo can grow within a 5 years, mature in the 5 years. Abundant source अपने पास available है. ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं. राइट. हाँ, बट अगर और एक कोई चाहता हो, मैं तो नीम आई एम वेरी फैसिनेटेड बिकॉज नीम जो है वर्ल्ड में सिर्फ 3-4 कंट्रीज में ही आता है. इवन चाइना में नहीं है. तो नीम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस कंट्रीज में नीम का ज़्यादा यूटिलाइज है. तो ये अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी प्लांट है. तो मुझे लगता है कि जैसे बाम्बू इंडिया है वैसे नीम का भी होना चाहिए. बट अगेन नीम ट्री टेक्स 20 years टू ग्रो. इसके लिए वी हैव नॉट टच दैट बिकॉज देन अगेन डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा एंड देन इट इज बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी. बट Right. नीम हैज दैट पोटेंशियल आई नो आफ्टर बाम्बू व्हिच आई एम थिंकिंग. Right. So let us jump into the rapid fire segment for now. What is the one city you would love to bring your bamboo products to? एंटायर वर्ल्ड. That is amazing. I love your passion for it, Yogesh. I'm completely inspired and motivated to do more in my life too about whatever thing I'm practicing. What is the one book or film that completely shifted your mindset? लक्ष्य. Could you tell more लक्ष्य. about it? ओके. लक्ष्य में जो जो प्लॉट बताया तो ही वॉज नॉट कि ऐसा जो ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो ही इज नॉट सेइंग कि मुझे इंडिया को पीओ के वापस लेना है. ये उसका एक लक्ष्य है कि मुझे वो पीक जो है वो मुझे जीतना है. एंड हाउ दे प्रिपेयर फॉर दैट. उनके क्या चैलेंजेस आते हैं. कुछ सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, बट हाउ दे रीच टू दैट पर्टिकुलर पीक. एंड इनिशियली उसकी जर्नी जो होती है, उसके पेरेंट्स या स्पेशली उसके फादर उसको टॉन्ट करते हैं, उसके दोस्त टॉन्ट करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ जाती है. देन हाउ ही take inspiration from that and how he became a successful to achieve that peak. So that is always a special film for me. So, do you think determination also plays a Yeah, greater yeah, role in your exactly. life? Consistency and determination चाहिए ही चाहिए. Okay, that is great. What is the one thing you think every household should have and is a bamboo product? So वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बट आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बैम्बू टूथब्रश बिकॉज दैट इज द डे स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो अगर हम अच्छी शुरुआत करते तो आपका दिन भी अच्छा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद बैम्बू टूथब्रश. दैट इज एवरी हाउस होल्ड शुड हैव. One word you would describe your co-founder with. लव. That is so cute. If Bamboo India could collaborate with any brands abroad or any big companies, what would be the one company? बिग कंपनी और पर्सन और Anything, just one name that Bamboo India has it in its vision to collaborate with. I think people should collaborate with Bamboo India. India should not collaborate with anyone. People should collaborate with Bamboo India. Why we go That is a outside? true businessman quality. Speaking about quality, what is the one quality that you have picked up from Ashwini ji? So there are so many, honestly, but the commitment.
when she decided कि वो just like सलमान खान, एक बार कमिटमेंट दे दिया तो What is the one most underrated bamboo product? underrated bamboo products, bamboo jewelry. Very underrated. Yeah. All right. One country that has inspired you the most during your travels, or one country that will always stay with you in every, at least every story or every conversation that you have. I will say two. Okay. First one is Germany, definitely, because that countries gives me the opportunity, the vision कि यार ऐसे हो सकता है. Hmm. What is quality of life is all about, work-life balance. And the second one is China, because the way these people left these political things aside, but these people are very hardworking, very committed, very honest, and they are unimaginable because हमने उनके बारे में एक अलग ही दुनिया बनाई है. Hmm. Because now every year I am traveling to China just to see what is new innovation in bamboo they have made. So they also have the same family structure, like एक ही घर में दो तीन भाई, उनकी बीवी बच्चे साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ खाते हैं. अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री जैसे नहीं कि न्यूक्लियस फैमिली है, जॉइंट फैमिली है. और बहुत ही मतलब वेरी लविंग पीपल. मतलब I really very touched with those people. So these two different world, West and East, I really appreciate. And India is exactly balancing in between because we have the same both the cultures accommodating. That is lovely. Yogeshi, what is the one mantra that keeps you going even on the hardest of the days? Keep walking. Just do. होता होगा मतलब a single drop on the stone कुछ टाइम के बाद वो क्रैक कर ही देगा. But don't stop. That was so deep and meaningful. What is the one advice that you would give to the youth watching today? Enjoy the life. काम को ही दुनिया मत बनाओ. You have friends, you have families, you have lots of the entire world. So try to become a global citizen. Don't restrict yourself in a specific comfort zone, because comfort zone is the most uncomfortable position. So just go out of your boundaries, explore things. अगर आपको जो लगता है वो करो, but don't try to harm anyone, because live and let live, that is the best thing. Just enjoy the thing. Don't think. कुछ लोग उनके लिए वो डिग्री सब कुछ होता है, कुछ के लिए टाइटल सब कुछ होता है, उसके लिए सक्सेस मीन्स लॉट्स ऑफ मनी. बट अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे, एंजॉय नहीं करोगे, तो वो मनी का भी क्या फायदा. सो जस्ट कीप enjoying the things, travel a lot, and spread happiness. Simple. Thank you so much, Yogeshi. I think we've covered most of the pointers. We have covered almost everything. I know that this conversation would take 3 to 4 days to actually cover everything, but we hope that we have covered most of it. Thank you so much for being here with us today. I'm Thank you very so much. sure that every youth that is watching it would be very, very grateful for the experience that you have shared and would be somewhere inspired and motivated by your words. Thank you so much from the entirety of the Youth of India Foundation. Thank you for being here. Thank you so much for having me here. And Youth of India, I will see ki, because these are the people who are shaping the world. I'm not saying the shaping India or shaping the community, but we are the next generation who are shaping the world. Right. So wish you all the best to enter your team, and wish you all the best. Thank you so Thank you much, so much. Yogeshi.